Good morning, everyone. Today's theme is theme number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. It's a cultural development and the same time period 600 BCE to 600 CE. This is the last chapter of book 1, or you can say ancient history. The time period was the same as usual, but in this time period, what were the changes that happened? I'm not talking about the social changes and all that. I'm talking about the religious. What were that happened and how the historians relate that topics that we are going to read out in this chapter. Still, basically, this chapter is telling you about the whole story of the Buddhism and their teachings, and especially Sachi Stupa. This whole video is telling you about the glimpse of the Sachi, और वी कैन से कि किस तरीके से फ़िलासफ़र्स उस टाइम पे जो फ़िलासफ़र्स आए या उस टाइम के अंदर जो जो फ़िलासफ़र्स ने किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग पूरे कंट्री को देखने की कोशिश की. नाउ व्हाट टाइम पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC to 600 CE. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आई टोल्ड यू अबाउट दैट द हरप्पन लाइफ, द होल हरप्पन सिविलाइजेशन के कुछ परमानेंट जो लीगेसी या वी कैन से कुछ फील्ड ऑफ रिलीजन्स थे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने जो है मदर गॉडेस को पढ़ा था, शिवा, पशुपति, ट्रीज, एनिमल्स, रिवर्स. इन सबको हरप्पन पीपल्स और हरप्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहा करते थे वो सब इन सबको माना करते थे एज अ पर्टिकुलर रिलीजन. दे वर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? After that, the Vedic time period came, and in the Vedic time period, who came? Aryans came. Who came in the Vedic time period? Aryans came. And Aryans also, as usual, follow the few fundamental things of the Indus Valley civilization. So, in whole, that Aryans follows the religion Hinduism. Clear? Aryans follows the religion Hinduism, and they also followed the basic thing, mother goddess, Shiva, Pashupati tree. They also following the basic fundamental things from the Indus Valley civilization. So means they also practice the worship of mother goddess, Shiva, Pashupati, etc. Clear? And so in whole we can say from the Harappan civilization, these style of the doing the worship adopted by the Aryans in the Vedic tradition, and the few we found in the Buddhism and Jainism. I am not talking about all. In the few we found in the religion of Buddhism and Jainism, but still Buddhism and Jainism basically oppose the Brahmanical text. All these practices are also in the current India, or we are following. So what I am going to explain, or what I am trying to explain you, is that if we talk about the Indus Valley civilization from the starting to nowadays, the few things that we are following in that are worship, then how to worship, to whom, or like that Vaishnavism, Shaivism, all these things were not after not of the recent times, या अभी की नहीं है. We were following from the starting. क्लियर? सो ये चीज़ें जो थी स्टार्टिंग से ही है. तो ये टेक्स्ट जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्स्ट है लाइक हरप्पन से आर्यन से जो है वैदिक ट्रेडिशन में आए, वैदिक से थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म जैनिज़्म ने अपनाया, फिर इंडिया में ये सब. तो व्हाट वर द चेंजेस? Like, and if you talk about 600 BC to 600 CE, so at that time there were so many philosophers. Now the philosopher, you can say in the name of the philosopher, Socrates, Plato, Aristotle, clear, Mahavira, Gautam Buddha, these were the philosophers. They trying to find out the mysteries that they found in their time period. Clear? Actually the philosophers
those who attempt at that time trying to understand the world in which they inhabited, वो समझना चाहते थे वो से फिलोसफर्स उस टाइम पीरियड में. आई एम टॉकिंग अबाउट 600 BC टू 600 CE, कि किस तरीके से मतलब वाई वी हैव टू फॉलो ओनली द ब्राह्मणिकल, वाई नॉट द अदर्स, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ना सिस्टम इन सबको समझ रहे थे, ऑरली रिटन में डिस्कस कर रहे थे और इनको अपोज भी कर रहे थे. दिस वॉज द टाइम पीरियड. So, in this chapter, we will learn about this whole long journey of the 1000 years. Now, like you can say 1200 years also, because we are talking about 600 BC to 600 CE. Different philosophers and thinkers came and they attempt to understand their world. As I told you, now only attempt to understand in which they inhabited. वो समझना चाहते थे उस मतलब वहाँ को सब कुछ को, एंड हाउ देयर आइडियाज़ वर कंपाइल्ड. सो इन दिस चैप्टर एक्चुअली वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ देयर आइडियाज़, वी आर जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द इन आइडियाज़ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन दिस लाइन. मेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द बुद्धिज्म. दे कंपाइल्ड इन द oral and then brittle form, expressed in the architecture and the sculptures also, not only in the text, because this chapter is basically depend upon the architecture, sculptures, monuments and all that. Okay, now so before starting this, the sources as usual. Source, from where we get the information, historians get the information. Buddhist text, Jainism text, Brahminical text. बॉडी ऑफ मटीरियल रिमेन्स जो भी बचा खुचे, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स बचे थे, जिसमें सांची स्तूपा. क्लियर, सांची स्तूपा तो फिर भी वी आर ऑल आर नोइंग अबाउट द सांची स्तूपा, बट बिफोर दैट अमरावती स्तूपा वॉज देयर, दैट होल रून बाय द यूरोपियंस एंड एवरी वन रून बाय देम. दे उसका तो हमें जब वो रून हुआ तब जाके हमें ये समझ में आया कि हमें स्तूपास जो हैं या सांची स्तूपा जो है जिसे हमें बचाना है. ओके, एंड इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स. तो बेसिकली जो फोकस करने वाले, देखो बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट तो हमेशा हम हर एक के अंदर पढ़ते ही आ रहे हैं. क्लियर, दीज टेक्स्ट. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज फोकस्ड ऑन द मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट्स. दीज वर द मेन थिंग दैट दिस चैप्टर इज फोकसिंग. क्लियर. सो हम इस चैप्टर के अंदर जो है हम इस चैप्टर के अंदर सांची स्तूपास, बुद्धिज़्म कैसे आया, या बुद्धिज़्म के आने के पीछे, बुद्धिज़्म या जैनिज्म के आने के पीछे व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, why it came, what happened at that time, what were the things that may not have to be done by that Brahminical and the other varna systems and other orders, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया गया, या फिर जिसकी वजह से जो है बुद्धिज़्म या अलग अलग फिलोसफर्स ने जो है अपनी बात को जो है रखने की कोशिश की. क्लियर. नाउ सो ये सब हम इसमें बुद्धिज़्म टेक्स्ट, फिर उसको जो है सांची स्तूपा एंड आफ्टर दैट स्कल्पचर्स के बारे में हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. नाउ द ग्लिम्स ऑफ द सांची. ग्लिम्स ऑफ द सांची ये इसलिए बता रहे हैं आपको, ग्लिम्स ऑफ द सांची बिकॉज सांची स्तूपा, जब सांची स्तूपा को जो है प्रिजर्व किया गया था, उससे पहले एज आई टोल्ड यू नाउ ओनली अमरावती स्तूपा भी था, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, तो उसको जो है उसके अलग अलग गेटवेज और ये सब जो है उसको रून कर दिया गया था, उसको यूज़ कर लिया गया था बाय द लोकल पीपल्स, बाय द अदर रूलर्स एंड ऑल दैट, तो या यूरोपियंस एंड एवरी वन, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट नोइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस. At that time, in the sense we are talking about the now the मतलब time period of that European time period, we are not knowing about the importance. और जब हमें importance पता चली, thank God, जब हमें importance पता चली तो हमने सांची स्तूपा को जो है उसको प्रिजर्व कर दिया. नाउ ये टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी का. क्लियर. नाउ दिस इज द टाइम पीरियड जो मैं आपको ग्लिम्स बताने वाली हूँ, जब इसे प्रिजर्व किया गया था, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द 19th सेंचुरी. So as we all are knowing, सांची स्तूपा is famous for its स्तूपा and declared Buddhist site of the यूनेस्को में जो है, यूनेस्को साइट्स में जो है इसका नाम आता है, बुद्धिस्ट साइट में, मेन साइट में. ठीक है. इसे किसने बनवाया था, ड्यूरेशन किसके टाइम पीरियड में बना था, अशोका के टाइम पीरियड में बनाया गया था. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अशोका का टाइम पीरियड कौन सा था, 2 BC के आसपास का टाइम पीरियड था. ठीक है. और फर्दर बाद में इसको रेनोवेट करवाया गया था, क्योंकि
जो स्तूपा आप अभी देखते हैं या जिसका जैसे पिक्चर आप बुक में देख रहे हैं, दैट वाज नॉट द सेम स्तूपा दैट एट दैट टाइम इन द अशोका टाइम पीरियड। इट वाज ओनली द हाफ डोम, इट वाज ओनली द शेप ऑफ द डोम एंड स्मॉल ईंटों से बना हुआ इस तरीके से था, और बाद में इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए गए थे, ठीक है। नाउ रेनोवेट इन द शुंगास टाइम पीरियड, और सतावाहना रूलर्स ने इसको रेनोवेट करवाया था, ठीक है। सो 19th सेंचुरी में, इन द टाइम ऑफ द 19th सेंचुरी इफ यू टॉक अबाउट, यूरोपियंस को जैसे मैंने आपको बताया अमरावती का पता चला, जैसे ही जो है स्तूपा ऑफ साचीज का उनको पता चला, दे ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हैविंग दैट, एंड वो इसको जो है ले जाना चाहते थे। क्लियर, कहाँ ले जाना चाहते थे? अपने म्यूजियम में रखने के लिए। सो यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन साचीज। अब साचीज कहाँ है? साचीज स्तूपा जो है हम MP में, भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल। क्लियर, भोपाल जो है दिल्ली से जब हम भोपाल की तरफ जाते हैं तो भोपाल के जो है नॉर्थ ईस्ट 20 माइल्स दूर जो है नॉर्थ ईस्ट में, नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स मान लीजिए, वहाँ पे जो है सांची स्तूपा है। इसको सांची काना खेरा भी कहते हैं। क्लियर, ये एक विलेज के ब्रोक, मतलब विलेज के बिल्कुल तल में जो बोलते हैं द ब्रो ऑफ दैट हिल, वहाँ पे जो है बसा हुआ है, ठीक है। नाउ, और नॉर्थ ईस्ट साइड में है भोपाल के। क्लियर, नाउ सो सबसे पहले अलेक्जेंडर की अगर हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर एग्जामिन दिस स्कल्पचर आर्किटेक्ट्स फॉर अ वीक। अलेक्जेंडर को जैसे ही अलेक्जेंडर को पता चला, ही एग्जामिन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने एग्जामिन किया? अलेक्जेंडर ने। क्लियर, ही एग्जामिन द स्कल्पचर, किसकी बात कर रहे हैं? सांची स्तूपा की। नाउ आफ्टर दैट इस अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, इन्होंने इन पे जो है बुक्स भी लिखी हैं, इंग्लिश वर्कआउट भी किया है, जिसके इन्होंने सांची स्तूपा के बारे में सब बताया है। क्लियर, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द 19th सेंचुरी। नाउ देन फ्रेंच पीपल्स ऑल्सो इंटरेस्टेड, फ्रेंचमैन ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द ईस्टर्न गेटवे। जो ईस्टर्न गेटवे एक्चुअली क्या होता है? दैट डिपिक्ट द गौतम बुद्धाज लेफ्ट पैलेस फॉर हिज एनलाइटमेंट, वो उसको डिपिक्ट करता है ईस्टर्न गेटवे, ठीक है। उसके ऊपर उसी के बारे में सब कुछ है। ईस्टर्न गेटवे जो गिरा हुआ था, ठीक है, वो उसको ले जाना चाहते थे अपने म्यूजियम में रखने के लिए, वो गिर चुका था। ईस्टर्न गेटवे जो है जो गिरा हुआ था, ठीक है। नाउ लेकिन शाहजहां बेगम, नाउ आई एम टेलिंग यू द नेम, 2 names ऑफ दैट टाइम पीरियड। फर्स्ट इज द शाहजहां बेगम, इनका टाइम पीरियड था, नोट डाउन, 1844 to 1860 रूलिंग टाइम, एंड आफ्टर दैट फिर 8 साल बाद 68 से लेके 1901 वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहां बेगम। क्लियर, नाउ that was their ruling time periods, okay, 2 times शाहजहां बेगम एंड his successors सुल्तान जहां बेगम। तो इन्होंने जो है डिनाई कर दिया, क्योंकि दे वर नोइंग अबाउट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द स्तूपा, तो मना कर दिया ले जाने के लिए, और इन्होंने जो है इंग्लिशमैन और फ्रेंचमैन दोनों को ही क्या दिया? उसका प्लास्टर कास्ट दिया। क्लियर, नाउ शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने जो है फंड जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाए थे, कि भाई इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की उस टाइम पे। सुल्तान जहां बेगम ने जो है म्यूजियम में भी फंड लगवाया, लाइक दे स्टार्टेड द म्यूजियम ऑल्सो, गेस्ट हाउस बनवाए, और उस गेस्ट हाउस में द नेक्स्ट कनिंगम के बाद जो आए वहाँ पे कौन आए? जॉन मार्शल केम देयर। जॉन मार्शल वहाँ पे आए, वो उनको म्यूजियम में वो रहे, और दे रोट सो मेनी वॉल्यूम्स ऑफ दैट सांची स्तूपा। क्लियर, और बाद में जो है सांची स्तूपा जो है इन्होंने जो है सुल्तान जहां बेगम को ही डेडिकेट कर दिया था। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि पब्लिकेशन का फंड किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। रिमेंबर, फर्स्ट नेम इज शाहजहां बेगम एंड सक्सेसर्स नेम इन सुल्तान जहां बेगम। क्लियर, स्तूपा was only survived because the wise decision. As I told you, Amravati not survived, and after that their eyes opened, everyone's eyes opened, and their wise decision. Decision of whom? Decision of that Sultan Jahan and that Shahjahan Begum. क्लियर, देर वाइज डिसीजन की वजह से स्तूपा जो है आज भी सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फंड लगाया गया और बाद में जो है जो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की। क्लियर, दैट्स वाई, एंड हमारा गुड लक अच्छा रहा कि किसी और की रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि एट दैट टाइम एज यू आर नोइंग अबाउट दैट कि रेलवे लाइंस गिर रही थी, तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की नज़र में नहीं आया, किसी बिल्डर्स ने नहीं देखा, या किसी और यूरोपियन ने म्यूजियम में ले जाने की कोशिश नहीं की, नहीं, तो दैट्स वाई ये सब नहीं हुआ। इसीलिए आज हम सांची स्तूपा को अच्छे से जान रहे हैं, अदरवाइज मे बी हु नोज अमरावती की तरह ही स्तूपा का होता। The most important Buddhist side of the discovery of Sanchi has vastly transformed our
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली बुद्धिज़्म. बिकॉज ऑफ दैट साची स्तूपा ओनली हम अच्छे से बुद्धिज़्म लाइफ अर्ली बुद्धिज़्म को समझ पाते हैं. सो देयर इज़ अ होल स्टोरी दैट वी अनकवर. सो what in this whole lesson we are going to do, like there were so many questions regarding that. The questions related to like इसकी क्या significance, इस monument की क्या significance है, किसने बनवाया, इसमें क्या है. like for example if we talk about the temples, तो temples के अंदर क्या होता है, temples के अंदर हमारी deities होती हैं. तो what about this, ये बुद्धिज़्म के लिए इतना importance क्यों है, what is in this. ठीक है, इसके चारों तरफ जो स्टोन का रेलिंग लगा हुआ है, what does that mean. ओके इसको जो है इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ होगा एंड एवरीथिंग. तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो सब चीज़ों के बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे हुआ होगा ये सब चीज़ें. तो इन सब चीज़ों को अनकवर करने के लिए हिस्टोरियंस के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी. तो इन सब चीज़ों को अनकवर करने के लिए हिस्टोरियंस ने अपनी सारी जैसे लाइक टेक्स्ट, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन, इन सब से कंबाइंड इंफॉर्मेशन जो है निकालने की कोशिश की एंड बुद्धिज़्म ट्रेडिशन या बुद्धिस्ट बैकग्राउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश की. दैट इज़ ऑल अबाउट दिस. सो इन दिस होल वीडियो व्हाट actually this is the starting of the lesson. Why we are going to read about the Sachi Stupa and all that, yeah, Buddhism. So the reason behind that, if we can say the reason behind that as in the summary, like first time IBC time period came, like Valley Civilization. Then afterward what came? Afterward came that Vedic traditions like Varnas and everything, clear. And after that there are so many thinkers, philosophers came that point out the Varna tradition or Brahmanical text, that point out all the text ki why we should follow all these things. Then they started opposing the things and then they start their reviewing on the particular old things that may not be possible to follow by that philosophers. क्लियर. तो ये सब इस चीज़ों के बारे में बताया गया ना. आफ्टर दैट वी कैन से हमें इस चीज़ के क्या सोर्सेज हैं, सोर्सेज जो हैं अब हमें इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली जो है सोर्सेज क्या है, स्कल्पचर. याद रखना अच्छे तरीके से, स्कल्पचर हमारा मेन. और स्कल्पचर में कौन सा स्कल्पचर पढ़ेंगे हम, पूरा का पूरा साची पढ़ेंगे. ठीक है. अब साची हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि साची जो है शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम की वजह से जो है साची बचा रहा. ठीक है. दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस. और इसकी सबसे पहले किसकी नज़र गई थी इस पर, कनिंगम की. एंड आफ्टर दैट जो है कनिंगम ने अपनी बुक्स के अपनी इंग्लिश वर्कआउट में जो है इसके बारे में लिखा है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट जो है इस पे वॉल्यूम्स किसने लिखी, जॉन मार्शल में. क्लियर. अच्छा इसके अंदर एक और नाम भी है, दैट इज़ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल, तज उल इकबाल तारिक भोपाल. द नेम इज़ द हिस्ट्री ऑफ भोपाल, जिसके अंदर शाहजहाँ बेगम में जो है उसके नवाब ऑफ भोपाल उसके बारे में और जो स्तूपा के बारे में सब लिखा हुआ है. क्लियर. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाई दीज चेंज्ड हैपेंड, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दीज चेंजेस. ओके, थैंक यू.